السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آج السلام۔ آج ہماری جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان کی ریویژن ہم نے کرنی ہے۔ کچھ بہنوں نے کر لی ہوئی ہے اور کچھ نے نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نمبر 1 سے ہی دوبارہ شروع کریں گے اور نمبر 10 تک ہم نے ریوائز کرنی ہے، آج ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، میرے بعد میں آپ نے کہنا ہے تاکہ جو غلطی ہو فوراً ہی نکل جائے، ٹھیک ہے۔ دعا نمبر 1، صبح شام کی دعاؤں میں دعا نمبر 1 جو کہ رکوع کے آخر میں بھی مانگی جاتی ہے۔ کسی بندے نے مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے فضل ہو گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں، اور واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف گئے اور پوچھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے کو جب رہنے دیں اس کا میرے اوپر، میں خود اس کا اجر دوں گا جب بندہ میرے پاس آئے گا، تو اللہ عالم کتنا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد یا ربی لک الحمد کما ینبغی کما ینبغی یا رب لک الحمد کما ینبغی یا ربی لک الحمد کما ینبغی۔ سب بہنیں میرے پیچھے کہیں، صرف کچھ بہنیں نہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی، نہیں میرے بعد میں کہیں، کیونکہ جب آپ میرے ساتھ کہتے ہیں تو دوسری بہنوں کو نہیں پتا چلتا، ٹھیک ہے؟ سب بہنوں کے ساتھ آپ کہیں یا رب لک الحمد کما ینبغی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی۔ آپ لوگ اکٹھے نہیں وہ ملا سکتے آواز کو، یا کو کسی بہن نے بہت سارا لمبا کیا تھا، بس 2 کاؤنٹ، یا ربی، یا ربی حروف ندا ہے اب، ٹھیک ہے؟ یہ یا جو ہے حروف ندا ہے، پکارنے کے لیے کسی کو آتا ہے آواز دینے کے لیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، لجلال وجہک لجلال وجہک، لجلال وجہک، لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وعظیم سلطانک۔ عظیمی نہیں ہے، وعظیمی، وعظیمی نہیں، آپ میرے پیچھے پڑھیں تاکہ سب بہنوں کو پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعظیمی، زی ہوگا کہ زی ہوگا؟ زی ہوگا، آ ہوگا کہ زی ہوگا؟ کس طرح؟ زا تو نہیں ہے جی، زی کس طرح ہوگا؟ عظیمی، وعظیمی موٹا بھی ہے نا۔ اچھا پلیز ساری بہنیں پیچھے میرے جب پڑھتی ہیں تو میرے پیچھے اکٹھی پڑھے، ایک دوسرے کی آواز بالکل ایک کی آ رہی ہوتی ہے، باقی کی بعد میں آتی ہے، تو اکٹھا پڑھیں گے، میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سننے والے کو کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعظیمی، سلطانک، سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی۔ یاد رکھے را موٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور غین بھی پھر موٹا رہے گا۔
لجلال وجهك وعظيم سلطانك لجلال وجهك وعظيم وعظيم سلطانك سلطانك بریک ہے سلطانک اوکے اب دیکھتے ہیں سلطانك اس کو یا ربی حروف ندا ہے پکارنے کے لیے آتا ہے تو اس کو غور سے بہت لمبا نہیں کرنا اب میں اکیلی پڑھتی ہوں آپ سب لوگ سنیں گے ٹھیک ہے ٹھیک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اے ربی میرے رب با کے آگے یا جو ہے متکلم کی آلریڈی وہاں پہ ہو یا ربی اے میرے رب لکل حمد لکا تیرے لیے لا کے لیے کا تیرے الحمد تمام تعریفیں اور تمام حمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر سبھی کچھ اس میں آ جاتا حمد میں کما جیسا کہ مانند کما مانند مثل جیسا کہ یم باغی لائق ہے کس کے وجہ چہرہ کیا تیرا تیرے چہرے کے لائق ہے جیسا کہ تیرے چہرے کے لائق ہے اے رب اے پروردگار اے رب تیرے آپ ہی کے لیے تیرے ہم کیونکہ اسے کا ایگزیکٹ میننگ کرتے ہیں آپ کے لیے ہی تعریف ہے تمام تعریفیں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تمام تعریف ہے جیسا کہ تیری جلیل القدر لی جلالی جلال والی ذات ہم کہتے ہیں نا جلال کیا ہوتا ہے چہرے سے بھی نظر انسان کے تو چہرے سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جلیل القدر ہے جلال والی ہے روب والی مرتبے والی اونچی شان والی تو لی جلالی جیسا کہ آپ کی جلیل القدر ذات کے وجہ کا وجہ کیا ہوتا ہے چہرہ یعنی کہ جیسا کہ آپ کے جلیل القدر اس کو بہت خیال سے جلیل القدر کہنا ہے جلیل ٹھیک ہے جیم کے ساتھ ہے ورنہ مطلب بدل جائے گا ٹھیک ہے جلیل القدر ذات کے لائق ہے وجہ چہرے کے لائق ہے یا ذات کے لائق کیونکہ ہر انسان کا چہرہ ہی نمائندگی اس کی کر رہا ہے ہوتا ہے کہ کون انسان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے جو بھی جتنی بھی تعریفیں لائق ہے جتنی حمد و ثنا لائق ہے جتنا شکریہ لائق ہے وہ سب اے اللہ تجھے پتا ہے کہ تیری جلیل القدر ذات کے لائق کتنا ہے وہ سب ہم کرتے ہیں عظیمی اور بہت بڑی عظیم بہت بڑی سلطانک سلطنت بادشاہت کا تیری یعنی اور آپ کی عظیم القدر عظیم الشان بادشاہت کے قابل ہے جتنی تعریف تیرے جلیل القدر ذات اور تیری جلیل العظیم بہت بڑی بادشاہت کے قابل ہے وہ ہم تیری یعنی تعریف کرتے ہیں اے پروردگار آپ ہی کے لیے تعریف ہے جیسا کہ آپ کی جلیل القدر ذات کے قابل ہے اور آپ کی عظیم بادشاہت کے قابل ہے تمام تعریف اللہ کی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اس دعا کو آپ نے مانگنا ہے ابن ماجہ کی ہے صبح کو یہ دعا اور شام کو بھی مانگے صبح کو بھی مانگے شام کو بھی مانگے ٹھیک ہے اس دعا کو آپ لوگوں نے مانگنا ہے دوسری دعا نمبر 2 ہے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اصبحنا وبک اللہم بک اصبحنا وبک امسینا دعا نمبر 2 ہے بچی آپ نے
तीसरी पढ़ रही है, मुझे पता चल गया। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर व इलैकन नुशूर। अब आप मेरे पीछे पढ़े इसको। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना अस्बहना व बिका अमसैना वबिका अमसैना व बिका नहया, वबिका नहया ये हा आनी चाहिए। व बिका नहया वबिका नहया व बिका नमूतु वबिका नमूतु व इलैकन नुशूर वइलैकन नुशूर व इलैकन नुशूर। वइलैकन नुशूर। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना बिका वबिका नहया वबिका नमूतु वइलैकन नुशूर व इलैकन नुशूर। वइलैकन नुशूर। अल्लाहुम्मा ऑलवेज हमेशा ही मोटा रहेगा अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम इसमें है, इसमें जलाला है। अल्लाहुम्मा बिका बी साथ का तेरे अस्बहना, हमने सुबह की। अस्बहना सबहा ना हमने, यानी हम सुबह के वक्त में दाखिल हुए जहाँ हमने सुबह की। ए अल्लाह तेरे नाम के साथ हमने बिका जो है ये तेरे साथ, यानी के तेरी अनायत से, तेरी मेहरबानी से हमने सुबह की है। ठीक है। वाबिका अमसैना, और हम शाम के वक्त तक दाखिल होते हैं। वाबिका यानी कि हम सुबह करते हैं और शाम के वक्त तक दाखिल होते हैं। वाबिका नाहिया, और तेरे नाम के साथ, तेरे साथ नाहिया हम जिंदा रहते हैं। वाबिका नमूतु, और हम मरते हैं। वाइलैकन नुशूर, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। तो ये इंशाल्लाह ताला देखे। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बी साथ का तेरे अस्बहना सुबह की, ना हमने वाबिका और साथ तेरे अमसैना रात की हमने करते हैं जा रात, क्योंकि ये जब जबरें आती है ना आखिरी हरफ पर, तो वो एक्शन हो रहा होता है, एक्शन की बात हो रही होती है उसमें। वाबिका और तेरे नाम के साथ या तेरे साथ नाहया हम जिंदा रहते हैं। वाबिका नमूतु, और तेरे ही नाम के साथ हम, तेरी ही रहमत से, तेरी ही अनायत से हम जिंदा रहते हैं, और तेरी ही अनायत से हम मरते हैं। यानी कि जाहिर है कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला की बरकत, नाम की बरकत से, अल्लाह की बरकत से ही सब कुछ होता है ना। क्योंकि अल्लाह फरिश्ता भेजता है और फरिश्ता जान ले जाता है। अल्लाह फरिश्ता भेजता है तो फरिश्ता जो है वो मलकुल मौत अल्लाह ही भेजता है ना। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ने ही मोहलत दी हुई है जिंदा रहने की भी, जब चाहे वो मोहलत उसको खत्म कर दे। वाइलैकन नुशूर, तो जब हमने मरना है ना तो तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। यानी कि हमारा कोई और अकीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इलाही, ए अल्लाह, या अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह जो होता है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आपकी अनायत से हम सुबह में दाखिल हुए, और आपकी मदद से हम शाम तक पहुंचते हैं, और आपकी बरकत से हम जिंदा रहते हैं और मरते हैं, और आप ही के हुजूर कब्रों से निकल कर हाजिर होना है। यानी कि जब इलैकन नुशूर, नशर क्या होता है, नशर क्या होता है, हम कहते हैं खबरें नशर हो गई, चारों तरफ फैल गई, फैल जाते हैं, है ना? फैल गई, बात फैल गई, बात नशर हो गई। तो ये हमने नशर कब होना है? क़यामत के दिन रब की तरफ ही नशर होके जाना है। जब मरते हैं अल्लाह की तरफ जाते हैं, और कब्र में इंतजार है, और क़यामत के दिन भी उठकर कब्रों से किधर जाना है?
चारों तरफ इंसान फैल जाएंगे ना उस जमीन पे, जो भी जमीन होगी उसमें कहीं भी तेल रखने की जगह भी ना होगी, इतना अगलों और पिछलों से भर जाएगी जमीन। तो ये 2 दुआएं हैं। इसके बाद इसके साथ ही हमारी शाम की दुआ भी है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इनकी, तो अच्छी तरह देख लें। शाम की क्या है? अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। थोड़ा सा फर्क के साथ अल्लाहुम्मा बिका, पहले अमसैना आएगा इसमें, शाम की दुआ में पहले अमसैना आएगा, और अस्बहना जो अमसैना की जगह आएगा, अमसैना अस्बहना की जगह आएगा, बस इतना फर्क है। तो आखिर में फर्क क्या है? व इलई कल मसीर, मसीह में हाँ जी फर्क आएगा। स्वाद या रा, मसीर, ठीक है। नुशूर की जगह मसीर आ जाएगा, ठीक है। 2 हरूफ तो 2 अल्फाज तो एक दूसरे के आएंगे जगह पर, जगह बदलेंगे वो, लेकिन एक जो है नुशूर की जगह मसीर आ जाएगा, ठीक है। मसीर होता है लौट कर जाना, ठीक है। मसीर और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ऐ अल्लाह, तेरे नाम के साथ हमने शाम की, और तेरे नाम के साथ हम सुबह के वक्त में दाखिल होते हैं, और तेरे नाम के साथ यानी तेरे अनायत से, तेरी मेहरबानी से भी कह सकते हैं, हम जिंदा रहते हैं और मरते हैं, जिंदा रहते हैं, और वाबिका, और तेरी तेरी अनायत से हम, तेरी ही अनायत से हम मरते हैं। वाइलैकल नुशूर, वाइलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है, ठीक है। लौट कर जाना, तेरी ही तरफ लौट कर जाना, ऐसे लगता है जैसे नहीं कि जब दुनिया में आए हैं ना, तो लौट कर उधर जाना है ना। तो फिर वाइलैकल नुशूर जो है ये कब्रों से उठना है, ठीक है। पहले लौट कर जाना है कब्रों तक, फिर नुशूर में कब्रों से उठना है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ऐसे ही होगा सिस्टर, ना माशाल्लाह, तो बढ़िया जब एक्सप्लेन किया। तो अबू दाऊद की ये है सुबह और शाम, क्योंकि देखिए इसमें नजर आ रहा है कि मसीर लौटना होता है। तो जी जिस जी जगह पे हम आए होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान हम जाते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, तो लौट कर किधर जाना है? जिधर से आए हैं, जिधर से आए हैं लौट कर उधर जाना है ना, लौटना है ना। अब कब्रों से उठकर लौटने का तो बनता नहीं है ना सेंस, जी क्योंकि हम डायरेक्टली अल्लाह के हुजूर से कब्र में नहीं गए थे, हम किधर आए थे? दुनिया में। तो इसलिए इसको बहुत समझ के देखने की जरूरत है कि नुशूर में कब्रों से उठकर नशर होना है, नशर होना है, सामने आ जाना है सभी के। जब खबर नशर हो जाती है तो हर एक के मुंह पे आ जाती है, हर एक के सामने आ जाती है चीज। कोई तस्वीर है वो नशर होगी तो हर एक के सामने आ ये गई। वो है कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी कब्रों से निकलना है, कब्र ये का और निकल कर सारे नुशूर कर में आ जाएंगे। गए, ठीक है। तो मसीर जो है, हम दुनिया में आए हैं, आए कहाँ से हैं? हमारी रूह आई है, रूह, अल्लाह की क्योंकि रूह का ताल्लुक आसमान से है, रूह आसमान से आई है। हमारा जिस्म दुनिया में जमीन से ही बना है, इसीलिए वो जमीन की तरफ रह जाता है, ठीक है। वो मट्टी से ही बना है और मट्टी होकर रह जाता है, लेकिन हमारी रूह जहां से आई है उधर लौटती है वापस, ठीक है। तो वो रूह और जिस्म का मिलाप जो होगा वो व इलैकन नुशूर की शक्ल में होगा। जिस्म और रूह होना है ना, जिस दिन रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी, सूरत में है ना 30वें पारे के, जिस दिन जिस्म में रूहें जिस्म से मिला दी जाएंगी, यानी दोनों का हिसाब होगा ना फिर। तो इसलिए तो वो नुशूर नशर होना है कब्रों से उठकर, मसीर लौटना है दुनिया से। तो दुनिया से लौटकर वो इंतजार वेटिंग रूम में जाना है। दुनिया से लौटकर किधर जाना है? वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में। पहले रूह तो डायरेक्ट जाती है ना, पहले लौटकर जाती है अपने रब के पास। रूह लौटकर अपने रब की तरफ जाती है, और फिर
اللہ सुबहाना ताला का जब हुक्म होता है तो उसे वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन ये नेक रूह होती है जो ऊपर जाती है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बदरूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, ना ही उसे अंदर आने की इजाजत दी जाती है। लेकिन नेक रूह को इल्लीयीन में उसके नामा माल रखे जाते हैं, उसको ले जाया जाता है, वह देखता है, अपनों से मिलता है, जो उसके इंतजार में होते हैं, सब खड़े इंतजार में होते हैं, मिलता है। और फिर वो सब जो भी अल्लाह ताला ने उसके साथ मामला करना होता है वल्लाहु आलम, क्योंकि कोई भी वहां की बात जाके बता के नहीं आया, क्योंकि वापस नहीं कोई आया। तो जी फिर उसको लौटा दिया जाता है। तो जब उसको लौटाया जाता है ना, तो उसका कफन दफन हो रहा होता है, जो हो गया होता है, ठीक है, वो उस वक्त उसको वापस कर दिया जाता है। लेकिन बदरू जो है वो भटकती रहती है, उसको उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। क्यों? क्योंकि फरिश्तों से पूछा जाता है, जो दरोगा है आसमान के, वो पूछते हैं कौन आया है। जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो पूछते हैं कौन आया है। तो जब इंसान, जब वो फरिश्ते कहते हैं, जाहिर है मलकल मौत है और उसके साथी फरिश्ते हैं, वो क्या कहते हैं, जे वल्लाहु आलम, इसमें बहुत डीप डाउन नहीं है। अभी याद बात कि क्योंकि मलकुल मौत फरिश्ते, मलकुल मौत जो है वो जान खींचने के लिए मुकर्रर है। तो जो ही वो जान खींचता है, तो जो फरिश्ते आए हुए होते हैं ना आसमान से, उसे अच्छा है तो वो जन्नत के फरिश्ते आए होते हैं, खूबसूरत शक्लों वाले आए होते हैं, जन्नत का कफन लाए होते हैं, खुशबुएं लाए होते हैं, और उसको रिसीव करने के लिए बहुत सारे आए होते हैं, जैसी रूह है उसके मुताबिक, ठीक है, जैसे हमारे अमल वैसे। तो वो आए होते हैं, तो वो मलकल मौत से फौरन झपक कर ले लेते हैं उस रूह को, ठीक है। निकालने का, जान निकालने का काम किसका है? मलकुल मौत का। मलकल मौत का। इजराइल अलैहिस्सलाम है ना, जी इजराइल अलैहिस्सलाम है। तो मलकल मौत का काम निकालने का है। यूं ही वो निकालता है, फौरन वो लपक जाते हैं, और लपक के उसको ले लेते हैं। तो वो फिर जैसा होता है ऐसा उसके साथ सलूक किया जाता है फिर ना। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमारी रूहों को अच्छा कर दे। ये आमीन। थोड़ी सी इसकी डिटेल में जरूरी कि अन्नुशूर और अलमसीर जो है, इसमें वो मिक्स अप भी होता है। और याद रखें कि ये एम, जाहिर है, अब इसके साथ लिंक लिंक भी देखे ना, तो अब क़यामत जो होगी वो कहा जाता है कि सुबह के टाइम बर्पा होगी। अगर इसका लिंक भी देखे ना, सुबह के टाइम क़यामत बर्पा होगी, सुबह के टाइम। इसीलिए जब जुम्मे का दिन होता है ना, क्योंकि जुम्मे के दिन कहा जाता है होगी, और जब जुम्मे का दिन होता है ना, तो तमाम अल्लाह की मखलूक जो है उसके इंतजार में खड़ी देख रही होती है कि आज तो नहीं है कहीं है क़यामत, क्योंकि हर एक को पता है कि क़यामत आने वाली है और हमने खत्म होना है। क्या हम यकीन कर सकते हैं इस बात पे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अल्लाह की सारी मखलूक सिवाय इंसानों के, हम तो जुमा आता है बहुत खुशियां मनाते हैं, नहा लिया, धो लिया, नेल काट लिए और सूरत कहफ पढ़ ली, वो भी इंतजार, वो भी तैयारी ही है हमारी भी वहां जाने की। लेकिन बाकी अल्लाह की मखलूक जो है वो इंतजार करती है इसका। और जब फिर सुबह का, यानी कि वो इंतजार का टाइम, जब वो सुबह का टाइम चला जाता है ना, जिस टाइम पे मतलब पता तो अल्लाह को ही है कब होनी है, तो वो जब सुबह का टाइम चला जाता है, वो तो फिर वो अपने कामों पे लग जाते हैं जो भी उन्होंने करना होता है, अल्लाह की मखलूक है ना। लेकिन इंसान गाफिल है, इंसान भूल-भुलैयों में है, इंसान रंगीनियों में है दुनिया की, इंसान मगन है, इंसान मसरूफ है, इंसान भूला हुआ है अपनी मौत को। कब्र हर वक्त याद करती है बंदे को, हर वक्त याद करती है, लेकिन बंदा
कब्र को क्या 70 बार हम कब्र को याद करते हैं दिन में? नहीं सिस्टर। नहीं करते। हम कब्र का नाम सुन के भी हम कहते हैं नहीं अल्लाह जी हले नहीं, अभी हमने जाना नहीं है। जी तो जी अल्लाह सुब्हाना व तआला के हजूर हाजिर होना है हमने। तो व इलैकन नुशूर व इलैकन नुशूर, कब्रों से उठकर वो सुबह के वक्त नशर होना है। ठीक है। जी और व इलैकल मसीर, सुबह को यानी सुबह हुई, हमारी जिंदगी की सुबह हुई। जिंदगी की भी एक सुबह होती है ना, जब हाँ हम जी। दुनिया में आते हैं, जब वो बच्चा बाहर आता है माँ के पेट से, तो एक वो खुशियों भरा माहौल होता है, सुबह होती जी है। जब सुबह होती है तो दुनिया में कितनी चहल पहल हो जाती है ना, खुशियां हो जाती हैं। जी जी और इसी तरह बच्चा जब घर में आता है तो क्या होता है, कितनी खुशियां होती है ना। हर बंदा अपने अपने रिश्ते के मुताबिक उससे खुश हो रहा होता है। अल्लाह न करे कोई दुखी भी हो रहा हो, होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने दिया है, जिसको भी दिया है अल्लाह का फजल है, जिसको वो बांटना चाहे बांटता है। तो खुशियां आती हैं, एक किस्म का सुबह का वक्त उस उन इंसानों के ऊपर दाखिल होता है जिसमें चहल पहल है, जिंदगी जी की आ जाती ना। एक माँ की भी वो कहते हैं ना कि माँ की जिंदगी में भी बहारें आ जाती हैं, बच्चा आता है तो ना। जी तो जब वो लौटता है, जब हम लौटते हैं तो क्या होता है, रात होती है तो कितनी उदासी सी हो जाती है ना, अंधेरा होता है। हम अपने गर्मियों के दिनों और सर्दियों के दिनों को लें तो कितनी उदासी होती है ना सर्दियों में लोगों को, जी डिप्रेशन और उदासी और सब कुछ। लेकिन याद रखें कि मुसलमान एक मोमिन डिप्रेशन में नहीं जा सकता, इल्ला ये कि उसकी जिस्मानी तौर से उसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसको लिए जा रही है उधर, यानी कि किसी की कमजोरी की वजह से। लेकिन आम हालात में जिसके हाथों में कुरान हो, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। वो अपने रब से लौ लगा ले फिर। अल्लाह करे कि हम ऐसे हो जाएं। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये अब मैं डीप डाउन इसके जाती रही ना, तो ये और भी चीजें याद आ रही हैं, मैं इसे खत्म करती हूँ अभी, ठीक है। जी इंशाल्लाह ताला, वरना मैं डीप डाउन तफसीर इसकी मैं चली जाऊंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्लाह की मखलूक में गौर फिक्र करना बहुत कम है, वरना हम तो करते ही नहीं है ना। तो सिस्टर करते जाएं, जितना करेंगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। मैंने ना डॉक्टर साहबा की ऑडियो सुनी है जब उनकी वालदा फौत हुई थी ना, डॉक्टर फरहद हाशमी की। तो वो बड़ी हार्ट टचिंग उनकी है, आपने भी सुनी होगी। जिसमें उन्होंने ये बताया था कि रूह कैसे आसमान तक जाती है। अपनी वालदा की ना डेथ डे पे उन्होंने वो खिताब किया था। सुभान अल्लाह ना। अल्लाह सुब्हाना व तआला, हमने सुना हुआ है वो जो है जी ना, ए, क्या है, महशर, मैदान महशर में मेरी कहानी। हाँ जी, बिल्कुल सुना एग्जैक्टली यही था। जी है, जी मैदान महशर में मेरी कहानी। जी बाजी वो आपने मैं भेजी मर हुई है। गया, और मैं मर गया जो है उसमें भी है, और मैं मर गया। ठीक है इंशाल्लाह, जहाँ पे हम खत्म करते हैं, और फिर बाद में जब आप लोग सुन लीजिएगा, बहुत लंबी हो गई है रिकॉर्डिंग, लंबी इतनी नहीं होनी चाहिए थी।